Hello, dear BSc aspirants. Welcome back to Vyas IAS CSAT course. Now, see, we have done 14 lectures till now. This is our 15th lecture, and we are in the topic of progression. So, in the last two classes, when we have started the topic of progression, we have seen arithmetic progression and its related question. We have seen geometric progression and its related question. All right, and we have in the last class we have also seen the concept of harmonic progression. Okay, in the last class we have also seen the concept of harmonic progression, the relationship between arithmetic progression, harmonic progression, and geometric progression also have been discussed by us. Okay, so we have seen all these concepts, all right, and some of the questions related to that. Now let's move forward. In this class, we'll do all the questions related to this and the probable questions that are going to come. Okay, look at these question. Now look at this question, guys. It is saying a equilateral triangle is drawn by joining the midpoints of the sides of another equilateral triangle. Okay, so you have this equilateral triangle and there is another equilateral triangle that is formed by joining the midpoints of this equilateral triangle. A third equilateral triangle is drawn inside this, okay, and so on the process continues. So you will have another equilateral triangle and then another equilateral triangle and then another equilateral triangle. This process continued infinitely. Find the sum of the areas of all the equilateral triangle if the side of the largest equilateral triangle is 8 units. All right. So let us see this, what we can do in this question. So basically, what is the area of equilateral triangle? Saying a equilateral triangle is drawn by joining the midpoints of the sides of another equilateral triangle. Okay, a third equilateral triangle is drawn by joining the midpoint of these equilateral triangle. Okay, so basically हो क्या रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, उसके अंदर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, उसके अंदर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, उसके अंदर एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है. So basically this is the process that is continuing, and the process continues infinitely. This process is continuing infinitely. So like you will have a small and a small equilateral triangle. Find the sum of areas of all the equilateral triangle if the side of the largest equilateral triangle is 8 units. Okay, the side of the largest equilateral triangle is 8 unit. Now what is the area of an equilateral triangle? Okay, what is the area of an equilateral triangle? The area of an equilateral triangle is what? Root 3 by 4 a square. Okay, root 3 by 4 a square. So root 3 by 4 into a is 8 square. So root 3 by 4 into this is what? 8 into 8. And this becomes what? 16. So you have 16 root 3 as the area of first equilateral triangle. Okay, you have 16 root 3 as the area of first equilateral triangle. But this is not where we will stop. Okay, now see, uh, now we have to find the area of second equilateral triangle. Okay, we have to find the area of second equilateral triangle. Now see, this this um, we have this equilateral triangle. All right, now see what will be the measurement of the side of this equilateral triangle. Okay, what will be the measurement of side of this equilateral triangle? So for example, if this equilateral triangle was a, this is 4, this is 4, this is 4, this is 4, this is 4 and this is 4, because this is the midpoint that is being said in the question कि आपका जो equilateral triangle है, जो ये बनाया जा रहा है वो किससे बनेगा? ये मिड पॉइंट से, ठीक है ना. दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल ये मिड पॉइंट्स का साइड है, ठीक है. अभी देखिए, अगर आप इफ यू लुक एट दिस, ओके, सो दिस इज 4 एंड दिस इज 4. ओके, दिस इज 4 एंड दिस इज 4, देन दिस विल आल्सो बी 4, देन दिस विल आल्सो बी 4, बिकॉज ये क्या है, ये तो सेम ही एंगल सबटेंड करेगा. ओके,
ये तो सेम ही एंगल सब्टेंड करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा. एंड इफ दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल देन दिस विल आल्सो बी इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऑलराइट, if this is equilateral triangle then this will also be equilateral triangle. आपका ये यहाँ पे 60 डिग्री का ही एंगल आएगा बिकॉज दिस इज 60 डिग्री. ओके, दिस इज 60 डिग्री, ये 4 है, ये 4 है, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो फिर ये दोनों भी 60 डिग्री. And if all these three angles are equal then it is an equilateral triangle. Then you have to have this side as 4 as well. Okay, then you have to have this side as 4 as well. Okay, so now let's see what will be the area of this triangle. तो अभी देखिए ये वाले जो ट्राइंगल है बिकॉज इसकी साइड जो है वो 4 हो जाएगी, तो what will be the area of equilateral triangle is √3/4 into 4 square. That is basically √3 into 4 का स्क्वायर into 4. ठीक है, so ये जो एरिया है, योर एरिया कम्स टू बी 4√3. ओके, फर्स्ट योर एरिया इज व्हाट, 16√3. नाउ योर एरिया कम्स टू बी 4√3. तो अभी इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहां से यहां तक आने के लिए यू हैव टू डिवाइड 1/4. ओके, यू हैव टू डिवाइड 1/4. अभी सिमिलरली यहाँ पे भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो वही बात हो जाएगी, है ना. तो आपका बेसिकली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेगा, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेगा. आर आपका क्या होगा, 1/4. आर आपका क्या होगा, 1/4. So what happens here is that now you have to find the sum of infinite geometric progression. Okay, now you have to find the sum of infinite geometric progression. Now sum of infinite geometric progression is what, a 1 minus r. So what is a here, so a is equal to 8 here. Okay, a is not equal to 8 here. A is what we calculated was 16√3. All right, a is what we calculated was 16√3. Okay, so let's just put a here, 16√3, and you put 1 minus 1/4. So this becomes 16√3, 3 by 3 into 4. Now this becomes √3, and this is what, 64/√3. So what is your answer, 64/√3? Let us once again see this question. What we did here was, first of all it was given कि एक equilateral triangle दिया हुआ है, and then you are joining the midpoints of these equilateral triangle, and by joining the midpoints of these equilateral triangle you get another equilateral triangle, and then you get another equilateral triangle inside this, and this process continues. सो वी फाउंड दैट अभी ये 8 है अगर साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये वाले जो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसकी साइड 4 ही बचती है. ठीक है, इसकी साइड आपकी क्या बचेगी, योर कॉमन रेशियो विल बी 1/4. ओके, योर कॉमन रेशियो ये आपकी 2 ही बचेगी. ठीक है ना, और देन एंड सो ऑन. ठीक है ना, तो मतलब ये आपकी साइड्स डिक्रीज हो रही है, तो ये एक डिक्रीजिंग जीपी बन जाएगा. और इनफाइनाइट जीपी है क्योंकि इनफाइनाइट ली द प्रोसेस कंटिन्यूस पूछा है. अब हमको पूछा है सम ऑफ एरिया, सम ऑफ एरिया. बट वी नो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है √3/4 a square. So what is √3/4? a क्या है यहाँ पे, a is 4, 4 का square. Okay, so you have what, you have sorry, a was 8. Okay, for the first 8 the a was 8, तो ये आपका 16√3 आ जाता है. एंड देन आपको पता है कि द नेक्स्ट ट्राइंगल इज the length of the side is just half. Okay, the length of the side is just half, so 16√3 a square. तो आपका ये क्या बच जाता है, 1/4 का स्क्वायर. Okay, so again sorry, this is 4 square. Okay, sorry, so this is what, √3/4. ये a क्या है, this is 4 square. So this is what, √3/4 into 4 into 4 divided by 4. So you have 4√3. So you know now your r is equals to 1/4. R is equals to 1/4. तो एक GP बस है, that's it. All right, GP बस है, that's it. So this is it.
Now look at this. After striking a floor, a rubber ball rebounds 5 by 6 of the height by which it has fallen. Find the total distance that it travels before coming to rest if it gently dropped from a height of 210 meters. Okay, if it gently dropped from a height of 210 meters. So अभी क्या है आपका क्या है एक rubber ball एक the question is like this, after striking a floor a rubber ball rebounds 5 by 6. Okay, तो अभी आपका ये 5 by 6 of the length rebound होगा, ठीक है ना, and then find the total distances meter that if that it travels before coming to the rest if it is gently dropped from a height of 210 meter. Okay, so your height was 210 meter है ना, so your first term is 210. Now, this next time when the ball goes down, next time when the ball goes down, okay, first of all, you are dropping it from a length of 210 meter. Next time, this will travel 200 meter and then it will come only 5 by 6 of 210. Okay, 5 by 6 of 210. Then it will again go down 210 times. Okay, and then अभी ये 5 by 6 of 210 है. Then again it will come out 5 by 6 into 5 by 6 of 210. And then it will go down how many times? 5 by 6 into 5 by 6 of 210. Okay, so this process will continue. This process will continue. Okay, until it becomes zero. So see what we can basically do here is first you take one term as 210, okay, and then let us start our geometric progression from the second term. Okay, let us start our geometric progression from the second term. Okay, so your first term will be what? Your ball came down 210 meters and then the first time it traveled 210 into 5 by 6. So it will travel this two times. First it will go up and then it will come down. So 2 into 210 into 5 by 6 and then 200, 2 into 210 into 5 by 6 का whole square and then 2 into 210 into 5 by 6 का whole cube है ना. So this will continue जब तक ये बहुत ही minimal ना हो जाए. Okay, then it will come to rest. तो infinite times होगा, ठीक है. तो हमारा बेसिकली ये क्या हो जाता है, सम क्या हो जाता है, दिस 210 है ना प्लस 2 into let us take this 210 common. So what will be left with you is ये 5 by 6 भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये 5 by 6 भी एक कॉमन ले लेते हैं. सो यू आर लेफ्ट विथ 1 plus 5 by 6 का होल स्क्वायर 1 plus 5 by 6 plus 5 by 6 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, क्योंकि रेस्ट तक आने तक ऑलमोस्ट इनफिनाइट टाइम्स ही हो जाएगा. सो दिस सम इज इक्वल टू व्हाट, a 1 minus r. So what is a here? A is 1. What is r here? 5 by 6. Okay, so this will become what? This will be 1 by 1 by 6, so this will become 6. All right, this will become 6. So this s is equals to 210 plus 210 into 5 by 6 into 6. Okay, into 6. Okay, all right, so now we can calculate this. We'll get our answer very easily. Okay, so what will this become is, okay, so you can obviously now calculate this. This will be 210. This will be 6 and 6 cancelled. This will be what? This will be 2100. Okay, so your total should come 2100 plus 210. So that will be what? 2310. Alright, so this comes to be 2310. I hope everybody is clear with what we did here. See, what happened here is basically we
started a process in which the ball it took a fall once and then again went up, then again came down, then again went up, then again came down, and this process continues infinitely. Okay, this process continues infinitely. अगली बार वो 5/6 जा रहा है, बट देखिए 5/6 इसको इतना छोटा कर देगा कि ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा जब रेस्ट पे आते आते, ठीक है ना। बट टाइम्स तब तक इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो हमको नहीं निकालना है कि nth टर्म क्या है। दैट इज नॉट व्हाट वी नीड। ओके, व्हाट वी नीड हियर इज कि ये इनफाइनाइट टर्म्स का निकाल ले, तो a1 माइनस आर निकाल ले। ओके, a1 माइनस आर निकाल ले, लेकिन उससे पहले हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 210 इंटू 5/6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमारा a1 माइनस आर जो आएगा, सो दैट एट टू 210, क्योंकि एक बार तो ऐसे भी गिरा था। So then your answer comes. Okay, then your answer comes. So I hope everybody is clear with this thing. Now let's move on to the next question. Now see, Tom and Jerry were playing a mathematical puzzle with each other. Jerry drew a square of size 32 सेंटीमीटर। तो ये जेरी है, इसने ये 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ किया, एंड देन केप्ट ऑन ड्रॉइंग स्क्वायर्स इनसाइड द स्क्वायर्स। ओके, ऐसे ये स्क्वायर्स के अंदर स्क्वायर्स बनाता गया, ठीक है ना, बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। वही वाली चीज हो रही है आपकी जो पहले हो रही थी, वहां भी मिड पॉइंट ज्वाइन किया था, यहाँ भी मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस दैट विल गो ऑन एंड ऑन, ठीक है ना, बाई मिड पॉइंट ऑफ द स्क्वायर। शी कंटिन्यूड दिस प्रोसेस indefinitely. Jerry asked Tom to determine the sum of areas of all the square that she drew. So if the Tom answered correctly, then what would be his answer? तो अभी देखिए, area of square क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ऑल राइट, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो आपका पहला जो स्क्वायर है वो 32 का स्क्वायर है, ठीक है ना। बट अभी मिड पॉइंट जब आपका ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जब ये आपका मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे, सो दिस इज योर मिड पॉइंट, दिस इज योर मिड पॉइंट। ओके, this is your, and you know this angle is 90 degree. Okay, so and this is what, this is your hypotenuse, this is your hypotenuse. So your hypotenuse is equals to what, a square, sorry, a by 2 plus a by 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो बेसिकली ये जो हाइपोटेन्यूज है आपका, ये आएगा क्या, so this is 2a square by 4, that is a square by 2। तो अभी आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो a रूट 2 आता है, a रूट 2 आता है। ऑल राइट, आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। आपका a रूट 2 आएगा, ये साइड है ना, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, दिस इज अ राइट एंगल, दिस इज अ हाइपोटेन्यूज। ओके, दिस इज अ हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल कम दिस मच, ठीक है ना। तो अभी देखिए आपका हाइपोटेन्यूज ए रूट 2 आया, एंड दिस इज व्हाट अवर साइड इज। ओके, दिस इज व्हाट अवर साइड इज। तो आपका ए रूट 2 से साइड डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो बेसिकली आपका ये जो नंबर है, ये 1/√2 इसका क्या है, 1/√2 इसका कॉमन रेशियो है, ठीक है ना, 1/√2 इसका कॉमन रेशियो है। अभी ये है ना इनफाइनाइटली चलता जा रहा है प्रोसेस, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। ओके, so we calculated that the side of the next square that we were getting was a root 2. Okay, a root 2. So देखिए area was a square, ठीक है ना। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा ऑफ द नेक्स्ट ट्रायंगल, a/√2 का होल स्क्वायर। सो द एरिया इज व्हाट, ए स्क्वायर बाई 2। तो एरिया देखिए हाफ से कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये 32 का स्क्वायर है विच इज 1024, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 512। इसका एरिया क्या हो जाएगा नए ट्राइंगल का 512। नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा 256, नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा 128। ओके, सो बेसिकली ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1024 है, r इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है ना। और देखिए इसमें भी आपको सम कहाँ तक करना है, इंफिनिटी तक करना है, ठीक है ना, इंफिनिटी तक करना है। सो बेसिकली योर सम इंफिनिटी इज व्हाट 1024 1 minus r, so this is it। okay, so
अभी इसका एरिया क्या आ जाएगा, 2048 आ जाएगा. दिस इज बट ऑब्वियस. ऑल राइट. So see, this question was easy. See, what we did here was, let's see one more time. There was a square, and then these two person were playing, Tom and Jerry were playing, and then they kept on drawing square inside square by joining the midpoints of the square, and then they continued this process indefinitely, and then they tried to determine the area of the square that they drew. So ये midpoint, ये midpoint, ये midpoint, ये midpoint, we will join all these midpoints. Okay, then we have to determine the length of this midpoint, and then it came to be a root 2, because this was a square, a square. Okay, a by 2 का whole square, a by 2 का whole square. ठीक है ना? So this became this. All right. See, now when we took the root of this, okay, तो हमें a root 2 मिलता है. जब a root 2 मिलता है, so what we do here is basically we just put this into area. So earlier we are getting area a square, a1. Then for second triangle we are getting a by root 2, that is a square by 2, that is half of the area of the first triangle. जब ये मिल गया तो बेसिकली उसका हाफ करते जाएंगे, तो बेसिकली हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 0, r इज इक्वल्स टू हाफ. ठीक है ना? और इनफाइनाइटी होगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे स्क्वायर ड्रॉ करते गए. ओके, so f infinity become what? A 1 minus r, and this a is what? This a is we know 1024, and this is 1 minus 2, so this is 2048. So I hope everybody is clear with this thing. Now let's move forward. Now you have this question: how many terms of the series 1 plus 3 plus 4 5 plus 7 will amount to 1 2 3 4 5 6 7? ये 6 7 5 है, ये 4 3 2 1 है. ओके, तो अभी आपको बोल रहा है कि ये एक सीरीज है 1 3 5 7, है ना? ये चलती जा रही है. ठीक है, इसका सम निकालेंगे तो सम क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1. ओके, अभी देखिए टर्म्स के बारे में पूछा है, टर्म्स के बारे में. तो अभी देखो, I am not trying to multiply here. Okay, I am not trying to multiply here. See, I know कि ये जो sum है ना, this is sum. ये किसका sum है? ये odd numbers का sum है. ठीक है ना? And ये odd numbers का sum है, तो ये किसके बराबर होगा? ठीक है, 6 7 and ये पूरा. ठीक है, अभी देखिए ये odd terms की सीरीज है, and I have already told you, अगर आप देखिए अपने फॉर्मूलेज में, कि ऑड टर्म की जो सीरीज होती है उसका सम n स्क्वायर के बराबर होता है. ठीक है, उसका सम n स्क्वायर के बराबर होता है. ये ऑड टर्म की सीरीज है. ऑड टर्म की जो सीरीज होती है उसका सम n स्क्वायर के बराबर होता है. अब देखिए n स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली हमको पता चल जाएगा, दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 एंड दिस ऑल. एंड इस नंबर को देखिए, यू हैव 1 2 3 4 5 6 7. अभी देखते हैं, ये 7 नंबर का है ना? और हम n स्क्वायर करते हैं, सो दिस इज 7. ओके, दिस इज 7. 1 2 3 4 5 6 7. अभी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7. देन यहाँ से यहाँ तक आप ये रखेंगे. ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6. ठीक है ना? तो अभी देखिए क्या होगा, ये 1 आएगा आपका. ठीक है, अब ये 2 आएगा आपका, फिर यहाँ पे आपका 3 आएगा. ठीक है, यहाँ पे आपका 4 आएगा, यहाँ पे आपका 5 आएगा, बिकॉज आप क्या करेंगे, ये रखते जाएंगे, है ना? दिस यू विल गो ऑन प्रोसीडिंग लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ आपका 5 आएगा, यहाँ आपका 6 आएगा, देन आपका 7 आएगा, देन आपका फिर 6 आएगा, because then this one will end. Okay, और फिर 5 4 3 इस तरीके से आपका आ जाएगा. so this will come equal to this. Okay, this will come equal to this. अभी देखिए, अगर मतलब if you are not able to remember कि ये 1 plus 3 plus 5 plus 7 का जो सम है वो n स्क्वायर के बराबर होता है, तो जरा सम करके देखिए. जब आप दो टर्म का सम कर रहे हैं, तो दो टर्म का सम कर रहे हैं तो n क्या है? 2, है ना? वी हैव 2 टर्म्स इंक्लूडेड, एंड इनका सम करिए तो 4 आ रहा है. तो क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर, n स्क्वायर सम आ रहा है.
ठीक है, जब 3 टर्म का सम करेंगे, 3 टर्म, तो n क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो देख लीजिए सम 9 आ रहा है, ठीक है ना। फिर n इक्वल टू 4 करके देखिए, ये क्या है 9 + 7 16, ठीक है ना। सो ये ऐसे भी आप एनालॉगी बिठा सकते हैं। दूसरा, देर इज वन मोर थिंग इज दिस सम, अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है ना, किसी को भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म, ओके। दिस इज if we are able to visualize how 1111 is multiplied, then we will be able to see कि ये जो है यही नंबर का स्क्वायर करने से ये सम आएगा, ओके। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये आंसर जानने के 3 तरीके, वन इज n स्क्वायर, है ना। इफ यू डोंट रिमेम्बर देन वी कैन सी कि ये n स्क्वायर कैसे आया, एंड देन अगेन दिस 111 वी नो कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये टर्म मिलेगा, ओके, तभी ये टर्म मिलेगा। सो सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इज वेरी इजी इवन इफ इट इज 7 टाइम्स, ओके। अगर ये 11 का स्क्वायर भी करना है तो देन ऑल्सो इट इज वेरी इजी। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now see, it is saying if eighth term of an AP is geometric mean of the first and 22nd term of the same AP, find the common difference of the AP given that the sum of the first 22 term of the AP is 770. So काफी वर्बोज है, देखते हैं क्या है। तो आपको एट्थ टर्म ऑफ द एपी बोल रहा है, एट्थ टर्म ऑफ द एपी ए ले लीजिए उसका फर्स्ट टर्म, तो एट टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा T8 is equals to a plus 7d, okay। Now this is the geometric mean of what, the geometric mean of AP, okay। Find the common difference of AP given the sum of the first 22 terms. So let us do this question. Basically what we are doing here is, what is the eighth term of AP? A plus 7d. Okay. Now it is saying that this eighth term of an AP is the geometric mean of the first and 22nd term. Okay. So basically it is saying that this eighth term A plus 7d ka square, okay, is geometric mean of first and 22nd term. So geometric mean is equals to root under AB. Okay. तो ये क्या आ जाएगा, you will have A plus 22nd टर्म को हम लिखेंगे 21d, so you will have this a square plus 49d square plus 14 ad, all right, this will be 14ad is equals to a square plus 21d, okay। So this will become what, this a square and a square will get cancelled, you will have 4ad square is equals to 21, this will be ad, all right, 21ad minus 14ad. So this is what, this is 7ad and this is 49ad square. This is 49ad square. So we have this 7 and 7 times it get cancelled. Okay. This is not a, alright. यहाँ पे सिर्फ d square है. You get d and d cancelled. Okay. So your 7d is equals to a. So a is equals to 7 times of d you are getting. Okay. What is the next information? It is given that find the common difference of AP given the sum of the first 22 terms is 770. Okay. So for sum of the first 22 terms is 770. So first term is what, A. Your 22nd term is what, A plus 21 into D. Okay. Now, and this is 22 n by 2 a plus l, okay। So अभी ये n by 2 करेगा तो ये 11 पता चल गया, तो ये जो 770 है ये कितना हो जाएगा 70, okay 70। So you have this 70 and then you have this what, this is, you are having basically 2a, okay, this is 11, you are having this 2a and 21d, okay, 2a and 21d. So अभी ये क्या है आपका, this 7d you can obviously put here because you want d only, that is been asked in the question. So you have 11 here and you put d is equals to 7d plus 21d, all right। तो ये basically this cancelled, okay, this already cancelled for us, we did this, okay, we don't need to write this 70, so this becomes what, this becomes 14d plus 21d,
Okay, this becomes 2 in ये 2 7s are 14 and this becomes 21D. This is what basically 35D and this is 70. So your D is what? D is 70 by 35, that is 2. Okay, तो ये तो basically question ये था कि आप condition लिख लीजिए and then you will get the answer. So you write the condition, you get the answer. But see, here we can do one more thing here. Okay, what we can do here? See, it is given your 770 is the sum of first 22 term. Okay, your 770 is the sum of first 22 terms. So basically it is saying कि ये आपका जो 770 है, so this is the average. So for example, let us say कि sum of AP is what? Number of terms into average. Number of terms into average. यही तो sum of AP है. All right. तो अभी आपका ये जो sum of AP है, ये 770 दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका 22 दिया है, तो एवरेज निकाल लीजिए. एवरेज निकाल लेंगे तो अभी आपका ये क्या आएगा? पुट दिस एज व्हाट? 11. ये 2 आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा. एवरेज क्या आ गया? 35 आ गया. अभी आपको एवरेज पता है, ठीक है, एवरेज पता है, तो एवरेज का मतलब क्या है? ए. ओके, ए प्लस आपका क्या है? 2D कर ए प्लस डी बाई 2 भी कर लेंगे तो भी आपका 35 आ जाएगा. सो दिस 2a प्लस डी इज इक्वल टू 70 एज वेल, है ना? और अगर इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड डाल दें, ठीक है ना, अगर इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड डाल दें तो हमारा काम बन सकता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें a की वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है ना, सो उस हिसाब से आपका डी निकल आएगा. नंबर वन थिंग. नंबर टू थिंग इज व्हाट कि वो लंबा इक्वेशन नहीं करना पड़ेगा. यू हैव दिस 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 35. ओके, एंड देन ये एट्थ टर्म वाला बस कॉन्सेप्ट और लगा दीजिएगा. सो देन यू विल गेट व्हाट? टू इक्वेशन, टू अननोन. ऑब्वियसली यू विल गेट 2 एज योर आंसर. ओके, सो देखिए दो तरीके से इस सम को कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Now look at this question. Sum of the series they are asking and up to 10 terms. अब देखिए ये series जो है it is very dangerous. It looks dangerous. You have 1 cube and then you have 1 cube plus 2 cube divided by 1 plus 3. Okay, and then you have 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and divided by 1 plus 3 plus 5. Okay, and this we have 2 till 10 terms. So basically what? ओके, सो बेसिकली इसका समेशन करना पड़ेगा इसमें. तो अभी देखिए क्या है, nth टर्म निकाल लेते पहले, ठीक है ना, कि nth टर्म क्या होगा. तो nth टर्म बेसिकली होगा क्या? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल डॉट 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 n क्यूब. और यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट n. ठीक है, यही nth टर्म होगा. तो nth टर्म बेसिकली है क्या? दैट इज समेशन ऑफ n क्यूब. ठीक है, that is summation of n cube divided by summation of this 2n minus 1. ये 2n minus 1 है ना, because यहाँ पे अगर आप 1 प्लस ये 2n minus 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तभी तो आपका 3 आएगा. ओके, तो nth टर्म ये मिल रहा है बेसिकली. तो nth टर्म ही किसी चीज का सम है. तो अभी देखिए nth टर्म क्या निकलेगा अगर आप इसका समेशन करेंगे. So you have n square n plus 1 का whole square divided by 2 and this is what? This is you have 2. all right, 2 को बाहर ले लीजिए, 2 का मतलब तो वही होता है. n का समेशन करेंगे तो n plus 1 by 2 आता है and 1 को देखिए आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो आपका n आता है. ठीक है, 1 को आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आता है. समेशन का मतलब ये है कि अब आप ये जो टर्म है इसको n टाइम ऐड करिए. तो हमने n को n टाइम ऐड किया मतलब n प्लस 1 बाई 2, है ना. यही तो होता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करने का, है ना. सो n प्लस 1 बाई 2 आ गया. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हो रहा हो बिकॉज दिस इज अ लिटिल टू मच ऑन मैथमेटिक्स. ठीक है ना. तो जब भी हम समेशन लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसका सम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर मैंने कहा कि समेशन ऑफ 2n, तो देखिए 2 तो मैं कॉमन ले लूंगी क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब n
कॉन्सिक्यूटिव टर्म का सम, तो n कॉन्सिक्यूटिव टर्म का सम क्या आता है, nn plus 1/2. All right, so I hope everybody is clear with this thing. अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. See, n square, okay, and this is n plus 1 का whole square divided by 4. Okay, this will come to be 4, क्योंकि आप n क्यूब देखिएगा, मैंने बताया है n plus 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर होता है ना, n plus 1/2 का होल स्क्वायर होता है. और ये जो टर्म है ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2n square plus 2n divide minus 2n divided by 2, and this will get cancelled and this will get cancelled and this will get cancelled. So your term that will be left is n plus 1 का whole square divided by 4. Okay, तो basically हमको जो nth term मिलता है वो n plus 1 का whole square by 4 मिलता है. ठीक है, मिल गया. Now what we have to do, अभी आपको इसका सम करना है ना. तो अभी देख लीजिए, अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं, है ना, if you are putting 1 in this, then the first term is what, 1, that is 1. चेक करने के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप इसमें 2 पुट करते हैं, so your first term is what, 2 plus 1 का whole square by 4, which is 2 plus 1 is 3 का whole square by 4. ठीक है, अभी देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बेसिकली है क्या, 1 प्लस 8 का 8, सो दैट इज 9. तो 9 का 3 स्क्वायर बाई 4, यही तो आ रहा है. सिमिलरली आप इसको टैली कर सकते हैं, ठीक है ना. तो हमारा टर्म तो सही आया है. अब हमारा टर्म क्या आया था, n plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. हम इसका अगर सम कर लें तो हमें हमारा 10 टर्म्स का आंसर मिल जाएगा. 10 टर्म्स का हमको सम करना है, ठीक है, तो कर लेते हैं. तो 1/4 तो कॉमन ले लेते हैं, दिस विल सम इसका करेंगे, तो ये क्या है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1. ठीक है ना. अभी n स्क्वायर का जब सम करते हैं, है ना, n स्क्वायर का जब सम करते हैं तो व्हाट विल गेट बेसिकली, ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन लिखेंगे. 2n का ये n का जब सम करते हैं तब लिखेंगे, और 1 का जब सम करते हैं आप तो क्या मिलता है वो लिखेंगे. ठीक है ना. सो वी विल राइट दिस. ओके, सो देखिए जब ये इसका समेशन करते हैं ना n स्क्वायर का, सो वी गेट व्हाट, 1/6 n प्लस 1. ओके, 1/6 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई n. एंड जब आप ये इस n का सम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, n प्लस 1/2. एंड जब आप ये इसका सम करते हैं तो आपको क्या मिलता है, n मिलता है. ठीक है, n मिलता है. सो दिस 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड, दिस विल बिकम n स्क्वायर प्लस n. ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलना है, दिस इज व्हाट, n प्लस 1 और 2n प्लस 1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n. ओके, दिस 1 टाइम n एंड दिस 2 टाइम n. ओके, प्लस 1 ये आपको मिल जाएगा. So you will have 2n square plus 3n plus 1 divided by 6. Okay, divided by 6, but wait here. एक तो ये 1/4 कॉमन में है, ठीक है ना, एक तो ये 1/4 कॉमन में है, और क्या है, you have this 2n square plus 3n plus 1, ये into n है ना. Remember this is into n. So you have this. अभी आपका ये क्या है, n square plus 2n है ना, ये आपका n स्क्वायर प्लस 2n है. अभी ये 1/4 हमेशा याद रखिएगा. सो दिस विल बिकम 6n स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 12n. ओके, एंड दिस विल बिकम व्हाट, 2n का क्यूब प्लस 3n का स्क्वायर प्लस n. ओके, तो अभी आपका ये आ रहा है बेसिकली 2n का क्यूब प्लस दिस इज 9n का स्क्वायर प्लस 13n divided by what, divided by 6 into 4. Okay, now you can put 10 here and you will get your answer. So it was that lengthy. Okay, it was that lengthy. So I hope ऐसे questions आपको नहीं मिले एग्जाम में. Okay,
सो ये आपका फॉर्मूला है, ये प्योर मैथ्स का क्वेश्चन है, बट स्टिल आई टोल्ड यू कि अगर ऐसा कभी कुछ किसी एप्टीट्यूड एग्जाम में फंस जाता है तो हाउ विल यू डू इट, ऑल राइट, सो हाउ विल यू डू इट, सो this is how we do this kind of question. Now look at this thing. You have been given, let the positive numbers a b c d be in ap, है ना. You have positive number a b c d और ये ap में है. Then the type of progression for the number a b c a b d a c d and b c d is, ठीक है ना. अभी देखिए what this is saying कि a b c d a b में थे, ठीक है ना. And ये a b c a b d be in a p. Okay, let the positive number a b c d be in a p. Then the type of progression for the number a b c a b d a c d and b c d किस टाइप के प्रोग्रेशन में है, ठीक है. तो A B C D A P में है, it is given. Now see, I have taught you one property that if you multiply or divide any constant number with all the terms in AP, then that will be arithmetic progression only. तो अगर देखिए ये A B C D है, अगर इससे हम A B C D को डिवाइड करें, है ना, हम हर टर्म से ए बी सी डी को डिवाइड करें तो ये भी एपी में रहेगा, ठीक है. ये भी क्या रहेगा, एपी में रहेगा, बिकॉज वी हैव स्टडीड दिस प्रॉपर्टी कि आप नंबर से ऐड कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. लेकिन आप क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा वो एपी में, है ना, रहेगा वो एपी में ही. तो अभी देखिए यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बीसीडी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ACD हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ABD हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा. तो आपका ये 1/ABC ये सब अभी AP में है, ठीक है. तो हमको पता है कि अगर 1/A और 1/B और 1/C AP में है, तो मतलब ये बेसिकली ABC क्या है, HP में है. तो ये सब बेसिकली क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. Okay, these are basically harmonic progression. So this is that simple. Okay, now let's move forward a bit. Now see this, what this question is asking. See now look at this question. ये क्वेश्चन क्या है, आपको सम पूछा है, सम में करना क्या है, 1 प्लस -1/3 है, ओके. एंड देन यू हैव 1 -1/3 का होल स्क्वायर, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1 -1/3 का होल टू द पावर 4, एंड देन 1 प्लस -1/3 का होल टू द पावर 8 एंड सो ऑन, ओके. तो बेसिकली जो पावर है, कॉमन रेशियो हमारा आर है, और पावर जो है वो स्क्वायर, और फिर ये इस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है ना. सो दिस इज हैपनिंग. तो अभी इसको हम 1/3 को, लेट अस टेक इट -1/3 को x ले लेते हैं, ठीक है. -1/3 को x ले लेते हैं, तो ये जो s इज इक्वल्स टू है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, ओके. दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एंड दिस इज विल बिकम 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 एंड सो ऑन, ओके. चलिए, तो इससे कुछ हमारा बदल तो जाता नहीं है ना. देन नथिंग इज गॉट चेंज, है ना. वी आर nothing became easy for us, okay. तो लेट्स डू ऐसा कुछ कि हमारे लिए कुछ आसान हो जाए, ठीक है, हमारे लिए कुछ आसान हो जाए. तो अब हम अपने लिए आसान कैसे करें, है ना, हाउ डू वी मेक दिस इजी फॉर अस. सो देखिए करना क्या है, जस्ट यहाँ पे 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, s इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. नाउ यू सी द मैजिक ऑफ दिस, अभी आपको जादू होते दिखेगा यहाँ पे, ऑल टर्म्स विल स्टार्ट गेटिंग डिसअपियर्ड. कैसे, आप ये 1 माइनस एक्स का ये करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, ओके. और इसको रहने दीजिए, ठीक है ना. नाउ दिस विल बिकम व्हाट, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, ओके. 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 8. अभी ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, 1 प्लस एक्स टू द पावर 8,
and this will become what, 1 plus x to the power 16. ओके, सो ये आपका ये होने लगा, ठीक है ना। सो बेसिकली आपकी जो भी पावर होगी, एनी पावर यू हैव, ओके, एनी पावर यू हैव, वो आपकी दिखने लगेगी यहाँ पे। तो नाउ दिस इज गोइंग टू इंफिनिटी, इसका कोई वो तो है नहीं है। सो नाउ बेसिकली आपका 1 माइनस एक्स इंटू एस क्या रहेगा, दिस 1 minus x to the power 16, and this x and this will go to infinity, this will go to infinity because वो जा रहा है, उसने हमको बोला है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, this x is what, -1/3, and this -1/3 to the power infinity will be what, ये देखिए 1/3 है, 0.33 होगा, इसको इंफिनिटी तक मल्टीप्लाई करते जाइए, एक बहुत ही छोटा टर्म होगा, that is approximately equals to 0. So s becomes what, 1, 1 minus x. So s becomes what, 1 by 1 minus x. Okay, s becomes what, 1 by 1 minus x. And you know what is x here, -1/3. Okay, you know that x is -1/3 here. So s is equals to 1 plus 1/3. Okay, so basically आपका s कितना आता है, I think this will come 3/4. Okay, this will become 3/4. So ये इतना easy था, बस एक term multiply करिए, so you will start seeing the magic that happened here. Okay, so this is the beauty of the maths, and then let's move forward. Okay, guys, now look at this question. What it is saying is the product of first five terms of an AP is 3840. If the first and second and the fourth term of AP are in GP, find the 10th term of the series. ठीक है ना, आपको you can solve a lot of things here. ठीक है ना, and now it is asking you कि अभी आप बताइए what is the 10th term. ठीक है, तो 10th term निकालने के लिए obviously A and D निकालना पड़ेगा. So we have to solve this cumbersome equation. अब देखिए, दिस इज नॉट सो कम्बरसम ऑल्सो फॉर अस, ठीक है ना, हमारे लिए ये इतना कम्बरसम नहीं है। हाउ, बिकॉज हमको बोल दिया गया है क्या कि कौन कौन से टर्म जीपी में है, वी वेर गिवन फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द एपीआर इन जीपी, ठीक है। तो ये चीज थी। अभी देखिए, इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं। Guys, look at this question. It is saying the product of first five terms of an increasing AP is 3840. If the first, second and fourth term of the AP are in GP, find the 10th term of the series. ठीक है? Find the 10th term of the series. तो अभी first five terms of an APR आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है first five terms में? देखिए, एक है ये a minus 2d, है ना, हम अज्यूम कर लेते हैं a minus d, a plus d and a minus d. Okay, a minus d, sorry, this will become a plus 2d. Okay, a plus 2d. So this becomes 3840. Okay, this becomes 3840. Now it is saying if the first, second and fourth term of an AP are in GP, तो फिर क्या हो जाएगा। तो अभी देखिए, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ टर्म ऑफ एपी आपको बोल रहा है जीपी में है। First is a minus 2d, second is a minus d, okay, and the third is what, fourth is a plus d. तो बेसिकली हमको बोल रहा है a minus 2d divided by a minus d is equals to a minus d divided by a plus d. Okay, this is what it is exactly saying. All right, तो चलिए, now obviously हम इसको पुट करके अपना ये इक्वेशन काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। ओके, तो बेसिकली हमारा आ क्या जाएगा यहाँ से कि ये जो आपका है a minus d का होल स्क्वायर is equals to a minus d 2d a plus d. Okay, now see what you are going to get from here is a square plus d square minus 2ad. Okay, from here you are going to get a square minus 2d square, this will become minus 2d square. Okay, and this will become what, ad
minus 2AD. Okay, AD minus 2AD and this is minus 2D square and this is this. तो अभी ये cancel कर दीजिए. Now you have D square minus 2AD is equals to minus 2D square. Okay, and this is minus AD. Okay, this is minus AD. तो अभी देखिए आपका क्या आएगा. This 3D square is equals to AD. Okay, and this is D and this is D. So you will have A is equals to 3D. A is equals to 3D. अब आपको देखिए A is equals to 3D पता चल गया है. You can obviously keep it here and you can calculate this. तो अभी यहाँ पे A equals to 3D रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा D. ओके, यहाँ पे 3D रखेंगे तो 2D आ जाएगा. यहाँ पे 3D 3D ही रहेगा. यहाँ पे 3D 4D हो जाएगा. एंड यहाँ पे 3D रखेंगे तो 5D आ जाएगा. ओके, 5D आ जाएगा. So basically now you have this d to the power 5 and this 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Okay, 1 into 2 into 3 into 4 into 5. तो देखिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको. Let us just start dividing this. Okay, so we have 1 into 2 into 3 into 4 into 5. 5 से डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, वैसे तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा. 4 से डिवाइड करते हैं. ओके, सो 4 1 टाइम्स वी आर गेटिंग, 4 9 टाइम्स वी आर गेटिंग व्हाट 36. ओके, एंड देन वी हैव व्हाट 4 6 are 24 and this 0 times. ओके, this 0 times. नाउ अभी 4 से डिवाइड कर लिया. अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी. सो वी हैव 320 एंड देन अब मैं इसको 1 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर ली तो आई हैव 160. एंड नाउ एट द लास्ट आई एम डिवाइडिंग दिस बाय व्हाट 5 से. सो 5 3s are 15. Okay, and this is 5 2s are 10. So d to the power 5 I am getting as 32. So d क्या मिलेगा मुझे 2. Okay, so d is equals to 2 for me. Now I know d is equals to 2. Okay, now I know d is equals to 2. I can obviously find कि मेरा वो क्या है. ठीक है ना, a, because a क्या है 6 है. अगर d 2 है तो a 6 है. Okay, so I got d is equals to 2. I got a is equals to 6. So what is my 10th term? Okay, my 10th term is a plus 9d and a is 6 and 9 into d is what? This is 18. So 18 plus 6 is equals to 24. So I hope everybody is clear with this thing. All right, everybody is clear with this thing. This was a question. See, I am solving a little cumbersome question today. Okay, now let's move forward. Now you have this. From first 12 natural numbers, how many arithmetic progression of 4 terms can be formed such that the common difference is a factor of 4 term? ठीक है ना, आपके पास क्या है, you are given from first 12 natural numbers how many arithmetic progression of 4 terms can be formed such that a common difference is a factor of the fourth term. ठीक है, तो बेसिकली आपको बोला गया है कि you have दिस नंबर 1 to 12. ठीक है, अभी आपने एक एपी फॉर्म किया 4 टर्म का, लेकिन ये जो आपका फोर्थ टर्म है ना, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, फैक्टर है. ठीक है, आपका जो ये a प्लस 3d है ना, सो दिस d इज अ फैक्टर ऑफ a प्लस 3d. ओके, सो दिस d इज अ फैक्टर ऑफ a प्लस 3d. तो अभी आप देखिए, इफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ a प्लस 3d, ठीक है ना, सो डेफिनेटली ये जो है आपका, ये जो a है d के टर्म्स में होगा. दिस विल बी समथिंग इन d के टर्म्स, या तो d, ठीक है ना, या तो 2d या 4d. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग.
नाउ सी व्हाट वी कैन डू हियर बेसिकली, अब कौन सा फैक्टर है ये तो हमको पता नहीं है, ठीक है। सो नाउ वी नो दैट कि a शुड बी डिविजिबल बाई d, ठीक है ना, a शुड बी डिविजिबल बाई d। तो अभी देखिए, लेट अस टेक सम केसेस, ओके। हमको क्योंकि केसेस ही पता करने हैं ना, इट इज आस्किंग अस कि हमें कितने ऐसे केसेस मिलेंगे, हाउ मेनी सच अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी फॉर्म, कि ये जो d है दैट इज अ फैक्टर ऑफ द फोर्थ टर्म, ओके। तो अभी देखिए अगर d इक्वल टू 1 ले लेंगे, if we will take d equal to 1 then it will be true, okay। fourth term का so for example if we will take d equal to 1, ठीक है ना, तो a equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सबके लिए ट्रू रहेगा, ठीक है ना। ये कर सकते हैं, ठीक है। if d equal to 1 ले लेंगे तो ये ट्रू रहेगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के लिए, है ना। क्योंकि देखिए अभी आपका 12th टर्म आएगा तो वो क्या हो जाएगा a प्लस 11d, ठीक है। तो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स के लिए पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 इंटू 1 रखेंगे 12, है ना। इसके आगे हमारे नंबर जाएंगे नहीं, तो हमारे ये 9 नंबर के लिए, ठीक है ना। दिस इज फॉर ये हमारा 9 तक के लिए है ना, कि फॉर एग्जाम्पल अगर डी हम 1 रखेंगे, ठीक है, सो देन ऑल्सो इट विल बी अ फैक्टर, ओके। सो बेसिकली सी बेसिकली होगा क्या, वी केम टू नो कि डी इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ ए, ठीक है ना। डी इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ ए, तो या तो ए और डी बराबर होगा, ठीक है ना, या फिर डी विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ ए। वाई? बिकॉज देखिए ए प्लस 3d अगर डी का फैक्टर है तो डेफिनेटली ए इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ डी, ठीक है ना, ए इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ डी। तो डी इक्वल टू 1 अगर ले लें, ठीक है, डी इक्वल टू 1 अगर ले लें, तो इट इज सेइंग कि हाउ मेनी सच अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी फॉर्म, कि जो कॉमन डिफरेंस है इज अ फैक्टर ऑफ फोर्थ टर्म। तो देखिए ये दिस विल बी एप्लीकेबल, ए इक्वल टू 1 ले लीजिए, ठीक है ना, तो देन एप्लीकेबल 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 लीजिए, 9 तक ही लेंगे। बिकॉज अगर आप ए 9 रखेंगे तो आपका ये जो 3d है ये 12 हो जाएगा, आपको यहीं तक नंबर लेने अलाउड है, तो आप 9 तक ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। You will not take number beyond this. Why? Because it is said you have to take first 12 numbers only. All right. Now see this. If we take d equal to 2, अगर d equal to 2 ले लिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है। so लेके देख लीजिए d equal to 2। so अभी आप देखिए if you are taking d equal to 2, so how many terms maximum you can take, है ना। तो अगर देखिए a फैक्टर है 2 का और अगर d equal to 2 है, तो ए या तो 2 हो जाए या 4 हो जाए, और क्या हो सकता है 6 हो सकता है, 8 भी हो सकता है। बट देखिए 8 अगर होगा, ठीक है ना, 8 अगर होगा और 8 प्लस 3d कर लिए, तो 8 प्लस 3d क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 नहीं चाहिए। लेकिन 6 प्लस 3d कर लिए तो 6 इन 3 इंटू 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सो वी कैन टेक ए इज इक्वल्स टू 6, तो ये 2 4 6 के लिए वैलिड है। ऑल राइट। एंड अगर d इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो ये जो a प्लस 3d है ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3, ये 9 प्लस 3 12, है ना। इसके आगे नहीं जाना है हमको, ठीक है, इसके आगे नहीं जाना है। तो हम क्या ले सकते हैं, a इक्वल टू 3 ले सकते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 3 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, देखिए बाकी नहीं ले सकते, बिकॉज देखिए अगर हमने 6 ले लिया तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, हमारा फोर्थ फैक्टर तक नहीं जाएगा। सो दिस विल बी 1 टर्म ओनली। सो वी गॉट द हियर 9 टर्म, वी गॉट हियर, वी गॉट ऐसे 3 सीरीज, एंड यहाँ पे हमको 1 सीरीज मिल गए। सो 9 प्लस 3 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 13, ओके, डेफिनेटली 13। तो देखिए 13 ऐसे प्रोग्रेशंस बना सकते हैं हम, है ना, 13 ऐसे प्रोग्रेशंस बना सकते हैं जहाँ पे ये इसका फैक्टर हो। All right, I hope everyone understood this. Basically, what I'm trying to tell here is that the question asks कि अगर D जो है वो फोर्थ टर्म का फैक्टर है, तो हम ऐसे कितने प्रोग्रेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, ठीक है, तो हमको यहाँ से पता चलेगा कि ये 3d है तो इसको भी d या d का कोई मल्टीपल होना चाहिए ना। सो वी नो दैट a इज दैट
डी इज अ फैक्टर ऑफ ए डेफिनेटली, ठीक है। सो डी इज व्हाट, डी इक्वल टू आप 1 रखेंगे, आप ए इक्वल टू 1 to 9 रख सकते हैं, क्योंकि फोर्थ टर्म क्या होगा, ए इज इक्वल टू 3d, 9 रखिए ये तो 3 इन प्लस 1 12, 12 से बाहर नहीं जा सकते, क्वेश्चन में बोला हुआ है फ्रॉम द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर हाउ मेनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप बना सकते हैं। ओके, सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस थिंग व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Guys, look at this question. You have uh, you have this series. It is given x1, x2, x3, xn and y1, y2, y3, yn. ये दोनों सीरीज अपने अपने में AP में है, such that xn minus yn is equals to n minus 2. It is also known that x3 is equals to y5. Okay, देखिए y5 है. See, I brought the question from the sheet, but see, I brought the screenshot only, but still वो typing mistake है. So this is y5. So whenever you get the handout, आप correct करिएगा, ठीक है ना? So this is y5. So you are asked the value of x99 minus y 197. Okay, x99 minus y 197. Okay, so let us see what we can basically do here. अभी देखिए आपको दिया हुआ है एक्स एन एंड वाई एन जो टर्म्स है इनका डिफरेंस एन माइनस टू है, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या है, एन माइनस टू है। सो लेट अस सी, वी हैव बीन गिवन एक्स एन माइनस वाई एन इज इक्वल्स टू एन माइनस टू। सो एक्स वन माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 minus 2. So this x1 means the first term of this AP is equals to minus y1 is equals to what, minus 1. So that means what, your y1 is equals to x1 plus 1, ठीक है। तो आपका जो भी फर्स्ट टर्म है ना ये x वाले AP का, वो आपके जो y वाला AP है उसका फर्स्ट टर्म इससे 1 जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन इज सेइंग। हमेशा इक्वेशन को ट्राई टू इंटरप्रेट करिए वर्ड्स में, ठीक है ना। अगर आपको कोई इक्वेशन मिल गया उसको वर्ड्स में इंटरप्रेट करिए, कुछ वर्ड्स मिल गए उसको इक्वेशन में इंटरप्रेट करिए, है ना। तो देखिए आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, ठीक है। अभी आपको देखिए एक और चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x3 इज इक्वल्स टू y5। ओके, नाउ व्हाट इज x3? x3 का मतलब है x1 प्लस 2d1, जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा क्योंकि ये AP में है। एंड y5 का क्या मतलब है, y1 माइनस 4d1, सॉरी 4d2, क्योंकि इस कॉमन डिफरेंस d2 होगा, ये सब AP में है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, ठीक है ना। अभी देखिए ये आपका y1 जो है वो बेसिकली क्या है, x1 प्लस 2d1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1 एंड दिस इज 4d2। ओके, 4 टाइम्स ऑफ d2। तो अभी आपका ये x1 x1 कैंसिल हो जाएगा आपको। Sorry guys, the presentation crashed. Okay, so let's begin. So basically where were we? यहाँ पे क्या हुआ कि बिफोर माई प्रेजेंटेशन crashed, तो हमने यहाँ तक ये कर लिया था कि x1 माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 पुट किया इसमें, बिकॉज n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। सो x1 माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो x1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई वन,
सॉरी, योर y1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस x1. ओके, 1 प्लस x1. ओके, ऑल राइट. सो अभी देखिए क्या होगा यहाँ पे. योर x3 इज इक्वल्स टू गिवन इज इक्वल्स टू y5. ओके, x3 इज गिवन इक्वल टू y5. सो दिस x3 is basically what? x3 is x1 plus 2 times of d1, है ना. यही होता है हमारा थर्ड टर्म. y5 क्या है? y1 plus this is 4 times of d1. now your x1, uh, this y1 we can write as x1 plus 1. Okay, and this, let us write this as 4 times of d2. ये d2 होगा. Okay, all right. So your x1 gets cancelled. So 4 times of d2 minus 2 times of d1. Okay, or you can write 2 times of d1 minus 4 times of d2 is equals to 1. Okay, 4 times of 2 times of d2 minus 4 times of ये आपको मिलेगा 1. ठीक है. Now you are being asked the value of x99 माइनस y197, है ना. सो अभी देखिए ये फाइंड करना आसान है. यू हैव x1 प्लस 98 इंटू d1. ओके, x1 प्लस 98 इंटू d1. ठीक है. और आपका ये जो y है, आपको क्या है? y1 प्लस 196 इंटू d2. ओके, 196 इंटू d2. अब देखिए यहाँ से तो आप d1 और d2 का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. ठीक है. नाउ अभी देखिए इसमें वैल्यू ही तो पुट करना है. देर इज नथिंग मोर लेफ्ट इन दिस. ओके, तो जब भी आप करेंगे ये इसको, तो आपका वैल्यू आ जाएगा कैसे? सी, यू नो x1 माइनस y1 इज इक्वल्स टू व्हाट? -1, है ना. तो x1 माइनस y1 को पास लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए यहाँ 98 टाइम्स d1 प्लस ऑफ, है ना. सॉरी, ये माइनस होगा बिकॉज ये माइनस है. माइनस 196 इंटू d2. ठीक है. तो इसमें से जरा आप 98 कॉमन लीजिए तो आपका क्या आएगा? d1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ d2, है ना. ये भी तो वही है. 2 इसमें कॉमन लेंगे तो d1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ d2 इज इक्वल्स टू 1. तो वी नो d1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ d2 इज इक्वल्स टू हाफ. तो बस यहाँ पुट कर दीजिए. x1 माइनस y1 तो पता ही है -1 है, और ये 98 है, और ये क्या है? हाफ है. तो बस 49 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा. दिस इज वॉट इट हैज बीन आस्क्ड टू यू. ठीक है ना. दिस वॉज वॉट इट हैज बीन आस्क्ड टू यू. Now see this question. आपको बोला है PQ are a 3 consecutive distinct natural number, then the expression is positive, negative, non-positive, non-negative. ठीक है ना. अब ये 3 consecutive distinct natural numbers है. ठीक है ना. तो अभी देखिए PQR है, 3 consecutive distinct natural numbers है. आपका नेचुरल नंबर है तो कहाँ से चालू होगा? 1 से लेके. सो P Q है, R है और P है. ठीक है, P है. आपको देखिए दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है बेसिकली. तो पूछ रहा है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा. ठीक है ना. तो मान लीजिए PQR 1 2 3 ले लीजिए. ठीक है ना. तो अगर आप देखिए इफ यू डू Q प्लस R, PQR ले लीजिए, Q प्लस R करेंगे. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? 5 एट 5 माइनस 1 4 आता है. ठीक है. देन P प्लस R करिए तो 4 माइनस 2 क्या आता है? आपका 2 आता है. ठीक है. 4 माइनस 2 आपका क्या आता है? 2 आता है. ठीक है. फिर देन P प्लस Q माइनस R करिए. P प्लस Q क्या होगा? 3 माइनस 3 क्या आता है? 0 आता है. ठीक है ना. 3 माइनस 3 क्या आता है? 0 आता है. तो देखिए ये तो 0 आ गया हमारा. ठीक है ना. ये तो 0 आ गया हमारा. व्हाट अबाउट एनी अदर, है ना. तो अभी आप लेट्स से 3 4 5 के लिए करके देख लीजिए, है ना. सो सी दिस पैटर्न विल गेट रिपीटेड. ओके, दिस पैटर्न विल गेट रिपीटेड. Okay, so see, once you have done for this, try for 2 3 4 as well. 2 3 4 as well. तो अभी देखिए 2 3 4 के साथ करेंगे तो 6 माइनस 3 ये वाला टर्म आएगा. ठीक है. P प्लस R करिए, है ना.
तो देखिए पहले हमने क्यू प्लस आर किया तो 7 - 2 आएगा, 5 आ गया। ठीक है, क्यू प्लस आर माइनस पी, 5 आ गया। अभी आप पी प्लस आर माइनस क्यू करिए। पी प्लस आर माइनस पी प्लस आर क्या है, 6, और 6 - 3 करेंगे 3 आएगा। ठीक है, एंड देन डू फॉर पी प्लस क्यू माइनस आर, तो देखिए 5 - 4 1 आएगा। तो पहले 0 आया, फिर 1 आ गया। ठीक है, मे बी नेक्स्ट 2 आ जाए। तो देखिए आपका नॉन नेगेटिव तो है। ठीक है, नॉन नेगेटिव तो है आपका। सो दिस इज योर solution for this. All right, let us move to the next question. Okay, so this is over. This series is there, so you can definitely try it by yourself. ठीक है ना, तो if you will do it by yourself then also you will get it, but we'll see in the next class because we have one more class left of AP. So that is for today. We'll see in you the next class. Thank you so much.